Yeah, this whole session will be recorded for you, and you might be able to really receive all the information, the content as per the requirement. Now let's begin with actually the natural language processing. So it has been seen that we are always trying to make devices as much convenient as it is possible. जितना ज़्यादा हम उसको convenient बनाने की कोशिश कर रहे हैं, in that process we are making it as simple as we human beings are. Like what happens, in which fashion, in which format we are using are all kind of our input data set. We are only trying to use the devices to the exact form so that the devices can easily interact with us. अब devices केवल हमारे साथ बड़े अच्छे से easily interact कर पाए, ये चीज हम मेंटेन करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम उन सारे इनपुट्स को एज इट इज फॉर्म में लेना चाहते हैं जिस फॉर्म में वो एक्चुअली नेचर में एडजस्ट करते हैं. तो अब जिस फॉर्म में वो नेचर में एडजस्ट करते हैं उसी फॉर्म के लिए हम इसको यूज करना चाहते हैं. तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी अपने आप में इट्स अ वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें जो हमारा बेसिकली कोई भी प्रोसेस है उस प्रोसेस में इफ इट इज वॉइस डिपेंडेंट, इफ इट इज अ स्पीच डिपेंडेंट, if it is a language dependent, so whatever the kind of a language we are using, directly we can give it to the device and device will start recognizing and doing it in your own way. कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि आपने देखा था कि जब सबसे पहले एलेक्सा आया तो एलेक्सा ने लोगों को बहुत सरप्राइज किया. सरप्राइज कैसे किया? एलेक्सा में ये था कि आपको कोई कीवर्ड टाइप नहीं करना पड़ता था, कोई बटन नहीं प्रेस करना पड़ता था, यू सिंपली कम अप एंड स्पीक कि एलेक्सा प्ले द म्यूजिक, एलेक्सा प्ले द न्यूज एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू. ठीक है. इससे पहले जिन लोगों के पास में आईफोन हुआ करते थे उन्होंने इस चीज को फील किया था कि ये प्रोसेस सेम मिला था उनको सीरी के अंदर, एप्पल के अंदर. सो एप्पल, देन आफ्टर एलेक्सा, देन आफ्टर गूगल असिस्टेंट एंड देन फाइनली आईबीएम वॉटसन, नंबर ऑफ थिंग्स हैज कम अप. बहुत सारी चीजें यहाँ पर आई जिसमें कि हमने ये फील किया, ये रियलाइज किया कि डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ अ नेचुरल कमांड ऑफ अ लैंग्वेज की नेचुरल कमांड से आप बड़े आराम से प्रोसेस कर सकते हैं अपने सिग्नल्स को. तो दैट्स इज व्हाट बेसिकली द टारगेट वी आर लुकिंग फॉर. यही हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और टारगेट है और इस टारगेट को वी आर गोइंग टू अचीव थ्रू दिस. So if we are going for try to understand what kind of introduction models are there, so what are the model creation, how the kind of algorithms are there, how we are going to use it, है ना, how we are creating the model, what are the model creation process, कैसे उसके कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं, कैसे what we are going to try, what is basically state of automata, morphology, and everything is there. So we are all going to this one, and this is our target. So if we talk about and we see here, so this is basically a combination. Under this combination, we are using all these combinations. We need to know some coding technique. We should understand what is the AI, and we should really understand basically what are the special features in the contents of the human language. So let's begin with the history of the NLP. We are looking for an NLP. Let's try to understand. So what is basically a focus on a machine translation NLP. So it was started in 1940 and the 1960. We are not going so bad how it was initially started. And then finally coming to the 1960 and 1980, it has been developed in the many years. So augmented transition network has been come up. So if you see here, like in the various kind of a meeting, when there is a translator who is immediately converting your language. आजकल सिस्टम आ गया है ना कि पहले क्या होता था कि ट्रांसलेटर्स होते थे, आपकी लैंग्वेज को सुनते थे फिर कन्वर्ट करते थे. बट नाउ व्हाट हैज बिकम, now the translator has come, you directly put your translator as a headphone and the person whomsoever is speaking his own language, it will be immediately converted into your own one and you will be able to really understand it. So अब ये जो हो गया है, this is exactly the part where we are using this one. So this augmented, so yes, grammar was developed. So this is all about the history, and if you want to be interested in what happened in 1968 and something 70, so that all histories are available 1980 for us. Now coming directly to the advantage of the NLP, let's start with this one, because whatever we are understanding, it is important to understand the reasons and advantages. जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें ये पता होना चाहिए कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं. सो अगर हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो NLP helps user to ask question about any subject and get a direct response within second. Within second का मतलब वही हो गया कि suppose that you are in Asia and somebody is speaking in Russian and you are an Indian, you only know Hindi and English. So what you are using, you are putting your translator on your headphone as the form of a headphone. Translator आपने लगाया, the person is speaking on the real time basis. रियल टाइम बेसिस पे ये पॉसिबल हो पाएगा कि जो भी रशियन में पर्सन बात कर रहा है
immediately that will be converted into your own language. तो आपकी ही लैंग्वेज में कन्वर्ट होता जाएगा और आपको वो अवेलेबल हो जाएगा. So NLP offers exact answer to a question means it not offer necessary unwanted information. NLP का फायदा ये होता है कि when you are putting your NLP for the various reasons, जब अपनी NLP को आप अलग अलग जगह पे किसी एप्लीकेशन पे किसी एक्शन में लेना चाहते हैं, तो आपने जो उससे सी होता क्या है कि जब टाइप करते हैं चीजों को तो हो सकता है कि बहुत सारे कंटेक्चुअल प्रॉब्लम आती हैं, ये लिखना है वो लिखना है कंप्लीट सेंटेंस लिखना है, जैसे ओपन द विंडो सफिशिएंट. So if you are speaking of open the window and the window is being opened through your system, then this is what the NLP use. So exactly आप जो चाहते हैं करना आप उतने ही keywords उसको देते हैं, with the help of those keywords the device will start working. NLP has computer to communicate with the human in their language. NLP की मदद से सिस्टम को जो आपको दिखा रहा है, दिखाने के साथ साथ सिस्टम आपके साथ में कन्वर्सेशन भी कर सकता है. और ऑब्वियसली हम जब चीजों को लिखते हैं वो कंपैरेटिवली टाइम एफिशिएंट हो जाती हैं. बिकॉज यू हैव सीन दिस एनएलपी हैज कम इनटू द व्हाट्सएप एज वेल. जब आपने व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो व्हाट्सएप के अंदर भी आपको एनएलपी दिखाई दिया. ये एनएलपी ऐसा नहीं था जब आप वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रहे थे, एनएलपी वहां पर था जहां पर आपने वॉइस के थ्रू टेक्स्ट लिखना शुरू किया. कीबोर्ड में एक बटन आ गया जिस बटन पर आप वॉइस के थ्रू बोलना शुरू करते थे और वो बोलने के साथ में आपका टेक्स्ट वहां पे लिखा चला जाता था. तो जब ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इस प्रोसेस की वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई. अब मैनी टाइम इट हैपेंस आई वांट टू राइट बट आई डोंट हैव अ टाइम. So if I'm walking, I'm doing anything, I'm simply putting my WhatsApp on, and with the help of a natural language processing, I'm immediately putting it out. So most of the companies use NLP to improve the efficiency of the documentation process, accuracy of the documentation, identify the. So this is the basically a part of this one. Let's move on. What are the basically disadvantages we are feeling in the case of this one? So the disadvantages what we are feeling is NLP may not show context. NLP is unpredictable. NLP may require more keystrokes. NLP is unable to adapt a new domain and it has a limited function. भाई अभी क्योंकि एडवांसमेंट स्टेज में है, चल रहा है प्रोसेस, मूव ऑन कंडीशन में है, तो किसी ने कोई बात कही, कोई भी कंटेक्स्ट नहीं है उसके साथ में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जिसका जो मन आएगा वो वहीं पे आके बोलना शुरू कर देगा. व्हेन इट हैपेंस तो थोड़ा सा कंटेक्चुअल प्रॉब्लम आ जाती है. अनप्रिडिक्टेबल, किसने क्या बोलना है जाके कुछ नहीं पता, एनएलपी का क्या रिस्पॉन्स आ जाए. कई बार व्हाट्सएप पे आप जब टाइप करते हैं, लिखा आपने कुछ और आया कुछ और गया. एनएलपी में रिक्वायर मोर कीस्ट्रोक्स, आपको कीवर्ड्स जरूरत से ज्यादा, क्योंकि लोग अपनी भाषा में जब बोलते हैं तो उनका प्रोनाउंसिएशन अपनी स्टाइल का ही होता है, जिस स्टाइल में वो उसको बात करना चाहते हैं दैट कम्स इनटू दैट फॉर्म, वो अपनी ही फॉर्म में बाहर आता है. NLP is unable to adapt a new domain. It has a limited function. That's why NLP is for specific task. कुछ specific task के लिए use करनी पड़ती है क्योंकि इसकी अपनी खुद की limitation. Now coming on the kind of a model we have. तो NLP का जो मॉडल है वो मॉडल में क्या है? They are the following two components of NLP. First, natural language understanding. Natural language understanding helps a machine to understand. अब इसमें क्या बात कर रहे हैं हम? Natural language understanding की बात करेंगे. So understanding analyzing human language by extracting the metadata from content such as concept, entities, keyword, emotion, relation and semantic roles. तो सबसे पहला टारगेट क्या हो गया? सबसे पहला टारगेट ये हो गया कि जब हम नेचुरल लैंग्वेज की बात करते हैं तो नेचुरल लैंग्वेज में सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट आता है. तो एनएलपी में अगर आप जा रहे हैं, प्रोसेसिंग में जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये जरूरी हो गया कि मैं जब आपसे कोई बात कर रहा हूँ तो वो बात आपको समझ में आनी चाहिए. सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज व्हाट? एनएलपी. So there should be NLP. वो NLP होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्या वो अंडरस्टैंडिंग helps machine to understand and analyze human language by extracting the metadata from the content such as concepts. किस चीज के बारे में बात हो रही है, एंटिटीज, किन किन चीजों को लेकर इन्वॉल्व किया जा रहा है, कौन कौन सी चीजें उसमें इन्वॉल्व, कीवर्ड्स, कौन कौन से स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करें, क्या लैंग्वेज के अंदर कुछ इमोशनल टच भी है, क्या लैंग्वेज के अंदर आपस में कुछ इंटरकोरिलेशंस भी है, और इसी तरीके से लैंग्वेज के अंदर कुछ अपने सेमांटिक रोल्स भी, that all taken care. So NLP mainly used in business application to understand the customer's problem in both. ये कस्टमर के लिए यूज किए थे, कस्टमर प्रॉब्लम के लिए
in both spoken and written language. It used to map the given input into the useful representation. It used to analyze different aspects of the language. अब देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जो एनएलपी की बात हम कर रहे हैं वो यूज की जा रही है किसमें, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स प्रॉब्लम। जो कस्टमर किस लिए आया, देखिए कोई भी चीज अगर यूज की जाती है इट मींस इट हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ इनपुट एंड रीजन। इसका अपना खुद का कुछ इनपुट और रीजन होता है। जब आप इस इनपुट और रीजन पर आप जाते हैं, यानी गो इनटू इट, जब आप इस पर जाते हैं, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ये किस किस ऑब्जेक्टिव को लेकर यूज किया जा रहा है, तो पता चलता है कि एनएलपी मेनली यूज फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज की जाती है, जहां पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं भाषा के थ्रू कि जो भी हमारा यूजर है जिसको कस्टमर बोल रहे हैं, इन बोथ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। सो एनएलपी इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टास्क। एनएलपी को दो टास्क हम करने पड़ेंगे। इट यूज टू मैप द गिवन इनपुट इनटू यूजफुल रिप्रेजेंटेशन, जिसके लिए फॉर्म में आए। तो आपका पहला काम ये है कि भाई इसको यूजफुल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ले दो। इट इज यूज्ड टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। आप किसी लैंग्वेज का डिफरेंट एस्पेक्ट जो होता है वो यूज करिए। इट इज यूज्ड टू एनालाइज डिफरेंट एस्पेक्ट। ये जो किस किस एस्पेक्ट्स को लेके ये जो बात है वो कही गई है, जो इनपुट दिया गया है लैंग्वेज का वो किस एस्पेक्ट को लेके दिया गया है, तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी आपको निकालने पड़ेंगे। दैट इज वन। सेकंड, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट था जिसमें एनालिसिस की बात करी थी, और सेकंड पार्ट में नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन की बात करेंगे। So natural language generation acts as a translator that converts the computerized data into natural language representation. It mainly involves text planning, sentence planning, and text rearrangement. तीन चीजों पे काम करता है। बड़ा ध्यान से समझने की बात है, बड़ी सिंपल फॉर्म में है ये कि नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, एक तो अंडरस्टैंडिंग होगी कि सबसे पहला पार्ट तो ये हो गया कि कोई भी लैंग्वेज एज एन इनपुट अगर आपके पास में आए तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। योर मशीन शुड बी कैपेबल टू अंडरस्टैंड इट। जब वो उसको अंडरस्टैंड कर लेगा देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ जनरेशन। तो अभी जो जनरेशन है दैट एक्ट्स एज अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द कंप्यूटराइज्ड डेटा इनटू द नेचुरल लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन। इट मेनली इन्वॉल्व्स टेक्स्ट प्लानिंग, सेंटेंस प्लानिंग एंड टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। अब आपने सपोज कीजिए आपको किसी भी लैंग्वेज को कहीं भी यूज करना है, किसी फॉर्म में यूज करना है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपने अपना लैंग्वेज का इनपुट लिया। अब ये लैंग्वेज को जो डील करने जा रहा है वो डील करने कौन जा रहा है, मशीन। जब ये लैंग्वेज को मशीन ही डील करने जा रही है तो क्या होगा, मशीन अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगी। तो सबसे पहला काम वही होगा, नेचुरल लैंग्वेज को समझा और समझने के बाद में उसको कोड करती है। कोडिंग इस फॉर्म में हो गई, कोडिंग हो गई जिस टाइप की मशीन आप यूज करेंगे, जो आपने मशीन की उससे आपकी सिग्नल जनरेट होगा। अब नाउ व्हाट इज द टारगेट, टारगेट ये तो ना था कि उसको कन्वर्ट करके मशीन की फॉर्म में रखना, यू आर नॉट हैविंग अ टारगेट टू स्टोर ऑन बट टू शेयर इट समवेयर। इसको कहीं ना कहीं शेयर करना है, एंड व्हाइल यू आर शेयरिंग इट यू नीड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ अ फॉर्म एज वेल। तो सपोज कीजिए मैंने कोई बात हिंदी में कही एंड समबडी नीड्स दिस इन इंग्लिश, सो द नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग हैज फर्स्ट पार्ट एनेबल यू टू अंडरस्टैंड द हिंदी। मैंने हिंदी में बोला तो उसको वो हिंदी में समझ ले, और जब वो हिंदी में उसको समझ लेगा तो देन व्हाट हैपेंस टू नेक्स्ट, वो अपने को प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद वो कीवर्ड्स के कन्वर्जन निकालेगा। जैसे मैंने कहा आपको, आप कैसे हो, तो आप कैसे हो, इन तीनों कन्वर्ट्स के कोड कन्वर्टर्स की मदद से आपको यू, हेलो हाउ आर यू, तो हेलो हाउ आर यू में वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, ये हाउ आर यू में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा हेलो आर यू। तो आप कैसे हो, हाउ आर यू, तो हाउ आर यू की फॉर्म तक वो पहुंचाएगा। रिजल्ट हो गया, तो यहाँ तक भी पार्ट हो गया। तो ये हाउ आर यू को, हेलो कैसे हो को हाउ आर यू तक पहुंचाने के लिए इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, एंड देन सेकंड फेज में इंपॉर्टेंट हो गया उसकी जनरेशन। तो जो कंप्यूटराइज्ड डेटा है हमारे पास हम उसको जनरेट करते हैं। तो एनएलपी इज डिफिकल्ट देन एनएलपी, अपने कंपैरिजंस बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि एनएलपी इज अ प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द लैंग्वेज। लैंग्वेज को पढ़ लिया, और एनएलजी जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ राइटिंग द जनरेशन लैंग्वेज। इसमें लिखते हैं, जनरेट करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, रीड। सो इट इज सिंपली नथिंग बट अ कांसेप्ट ऑफ रीड एंड राइट। इट प्रोड्यूसेस नॉन लिंग्विस्टिक आउटपुट फ्रॉम नेचुरल लैंग्वेज इनपुट्स। भाई आपने जब इसको दिया नेचुरल लैंग्वेज प्रोवाइड कर दी तो क्या होगा, जो आउटपुट आप जनरेट करोगे वो आउटपुट सिग्नल की फॉर्म में होगा, और वो जो सिग्नल है
उसको यहाँ पर कंस्ट्रक्टिंग नेचुरल लैंग्वेज आउटपुट समथिंग नॉन इंग्लिश। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको उसको सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म हो सकता है, बाइनरी डेटा हो सकता है, कोई भी डेटा अगर आपके पास में है तो वहां पर ये आपका यूज हो जाएगा। इज दैट ओके? सो ये दो जो है वो एनएलयू और एनएलपी के बहुत स्पेसिफिक टारगेट्स। एक नजर इसको गौर से देखिए, दोनों को दोनों के फॉर्म। ना कमिंग ऑन पॉइंट, जब हमें ये समझ में आ गया तो अगर ब्रॉड सेंस में हम बात करें तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने सोचा एनएलपी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें दो सेगमेंट्स के अंदर काम करना पड़ेगा, एनएलपी और एनएलयू। एनएलपी और एनएलयू के बीच में हमें इस पर काम करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट आवर टारगेट, ये हमारा टारगेट है। तो अब जब हम इस पर टारगेट पर हम काम कर रहे हैं तो टारगेट में काम करने पर हमने दोनों को समझा और दोनों के डिफरेंसेस को समझ लिया, किसमें क्या करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसमें अभी समझने की कोशिश करते हैं कि इसके एप्लीकेशंस है क्या क्या। जब आप इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आंसर, एलेक्सा एग्जांपल आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट। दूसरा स्पैम डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन यूज टू डिटेक्ट अनवांटेड ईमेल गेटिंग टू यूजर इनबॉक्स। अब इसमें क्या होता है, स्पैम डिटेक्शन में आप जो ईमेल्स आपके पास में आते हैं और जो बेकार के ईमेल्स आते हैं वो स्पैम में जा रहे हैं या, तो इसके लिए अगर आपने कोई पर्सन यूज किया है, ध्यान से समझिएगा, तो आपके ईमेल्स रीड हो जाएंगे। आपने किसको यूज किया, किसी मशीन को यूज किया, मशीन आपकी ईमेल्स को पढ़ती है, पढ़ने के बाद में उनकी कीवर्ड्स की मदद से उसको लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट करती है, और जब वो लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तब उसको स्पैम और स्पैम कैटेगरीज में डाल देते हैं। थर्ड पार्ट आता है सेंटिमेंट एनालिसिस, नोइंग एन ओपिनियन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो लोग अपने सोशल मीडिया पीएचडी पर बहुत कुछ लिख के छोड़ देते हैं, उसके पीछे स्क्रीन में अंदर क्या चल रहा है, उनकी मेंटल स्टेटस क्या, व्हाट दे आर गोइंग टू डू, whether they are going to commit a certain kind of a crime for themselves or to someone else, किसी और को करना चाहते हैं, अपने आप को करना चाहते हैं, that's all are here। okay? तो ये सारी चीजें जो है वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप सेंटिमेंटल एनालिसिस को करने जा रहे हो तो जब तक आप उस लैंग्वेज का इमोशन कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग सेंटिमेंट एनालिसिस आल्सो नोन एज ओपिनियन माइनिंग, जो ओपिनियन माइनिंग की तरह से काम करता है। इट इज यूज्ड ऑन द वेब टू एनालाइज एटीट्यूड, behavior and emotional state of the sender. The application is implemented through a combination of NLP, natural language processing, and statistics by assigning the values of the text positive, negative, or negative. Identify the mood of a context happy, sad, or. अब आप ये बता सकते हैं इससे क्या है कि such kind of emojis in can be created. If suppose you are getting a certain kind of a signal and like a message is there, उस मैसेज को पढ़ के समझ के मशीन अपने आप में रिस्पॉन्ड करते हैं व्हाट यू आर फीलिंग ऑन दैट। सो ऑन योर बिहाफ a machine can do all these kind of things. Now looking for a machine translation. Machine translation is very good. Like taking an example is text to speech from one natural language to another language. Java default, जैसे आपने गूगल के ऊपर एग्जांपल देखा होगा, इंग्लिश से हिंदी में आप कन्वर्ट करते हैं, then what you are, that is the same one. तो ये एग्जांपल भी यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो ट्रांसलेशन का पार्ट ये होता है, ये नेचुरल लैंग्वेज का भी पार्ट होता है, जिसमें आप लैंग्वेज को इसकी मदद से कन्वर्ट कर रहे हो। तो एग्जांपल सबसे अच्छा है गूगल ट्रांसलेटर, और गूगल ट्रांसलेटर के साथ में जो बेसिकली बड़े स्पीकर्स होते हैं, उन स्पीकर्स जो यूज करते हैं वहाँ भी यूज हो जाता है। तो there are different kind of a translator, not only the taking and the Google as a translator only, केवल गूगल ट्रांसलेटर को नहीं लेके चलते, बट अदर देन द गूगल ट्रांसलेटर मोर कैन बी टेकन और भी ज्यादा दिए जा सकते हैं। So spelling correction, yeah, that's why also very important. Nowadays you see we have so many बहुत सारे आपके पास में ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिन एप्लीकेशंस के अंदर आप यूज करते हैं, इतने सारे एप्लीकेशंस आपके पास में होते हैं
जिन एप्लीकेशंस में आप यूज करते हैं उनको, जहां पर आपका टेक्स्ट ऑटो करेक्ट हो जाए। तो जो ऑटो करेक्ट सिस्टम है अपने आप में, वो ऑटो करेक्ट सिस्टम में आपको इंक्लूड कर देना, वो पार्ट भी तो अपने आप में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का हिस्सा हो गया, जो आपकी लैंग्वेज को समझ लेता है, उसके टेक्स्ट के कंटेंट को लिख कर लेता है, ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है। So Microsoft Corporation provides a word processor software like the MS Word, PowerPoint for spelling correction. तो ये भी अपने आप में एक एग्जांपल हो गया इसका। नेक्स्ट हो गया स्पीच रिकॉग्निशन। ये सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास में स्पीच रिकॉग्निशन। आप स्पीच रिकॉग्निशन में भी आप इसी तरह की चीजों को यूज करते हैं, और speech recognition is for converting a spoken words into text. It is used in applications such as mobile game automation, video recovery, dictating to Microsoft Voice, biometric voice, user interface and so on. तो ये अलग अलग टाइप के स्पीच रिकॉग्निशन प्रोसेसेस हैं। ये स्पीच रिकॉग्निशन प्रोसेसेस कन्वर्ट किए जा सकते हैं और बड़े आराम से इनकी मदद से आप अपने डिवाइसेस को वॉइस इनेबल बना सकते हैं। बहुत एग्जांपल है, एलेक्सा अपना एक एग्जांपल है, रिमोट है, गूगल असिस्टेंट है, बहुत सारे। तो वॉइस क्वालिटी में आपसे भी हो सकता है आवाज के साथ में। चैटबॉट्स, चैटबॉट्स भी अपने आप में आजकल बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे आप देख रहे हैं कि आईआरसीटीसी की वेबसाइट है या किसी भी जगह की वेबसाइट हो, उन वेबसाइट्स के ऊपर ये चैटबॉट्स के कंसेप्ट आ गए। आप जैसी वेबसाइट के ऊपर जाके एक्सेस करेंगे, व्हाट हैपेंस, समबडी कम्स एंड स्टार्ट टॉकिंग टू यू। अब आपने अपनी भाषा में उसके साथ कुछ लिखना स्टार्ट किया, इट इज आंसर टू यू, प्रोवाइडिंग अ सर्टेन काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑन whether like keywords you are giving to it. तो keywords दिए जा रहे हैं उसके बेसिस पर आपने फिर यहाँ पर किया। Implementing the chatbot is one of the important application of NLP. It is used by many companies to provide the customer service. Information extraction. Information extraction is one of the most important application. It is used to extract structured information, unstructured and semi-structured machine learning. ऊटपटांग डेटा है, कंटेंट का फैला हुआ, उसको अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आपने देखा ना कई बार ग्रामरली वगैरह के सेंटेंस आपको क्या करते हैं, मदद कर देते हैं कि आपका सेंटेंस अगर गड़बड़ है तो आप सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। एनएलयू आपकी सिंपल नाइन है एग्जांपल, अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कहीं भी कुछ हो किसी को समझाने में काम आ सकती है, जिनको समझ नहीं आती उनको कन्वर्जन करके लैंग्वेज में समझाया जाए। बड़ों को बच्चों की बात समझाई सकती है, बच्चों को बड़ों की बात समझाई जा सकती है। So many of the applications are here those can tell us that this natural language understanding is very much important. So I hope so. This is a bit good kind of information and such kind of a data we given. So we have started with the kind of what exactly the NLP है क्या, NLP के तो basically जो component है, major part है, वो है NLG और NLU। NLG और NLU के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने उसके बाद में उसके applications के बारे में पढ़ा। So these are the major applications that we are studying up. फिर हाउ टू बिल्ड एन एनएलपी पाइपलाइन। अब एनएलपी को क्रिएट करना है। अब क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या है, सेंटेंस सेगमेंटेशन। अब इसमें कुछ प्रोसेस है, अगर आपको सपोज करें एनएलपी पाइपलाइन को क्रिएट करना है तो व्हाट आर द बेसिक प्रोसेस टू डू इट, इनको कैसे कर पाएंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो सेंटेंस सेगमेंट्स में फर्स्ट स्टेप टू बिल्डिंग द एनएलपी, it breaks the paragraph into separate sentences considering following paragraph. Independence Day is one of the important festivals for every Indian citizen. It is celebrated on the 15th of August each year since India got independence from the British. The day celebrates independence in its season. Up sentence segment produces the following way. Independence Day is an important festival for every Indian citizen. It is celebrated 15th August each year ever since it got independence from the British rule. This day celebrates independence in two seasons. समझ में आया? तो हुआ क्या, सबसे पहले जो सेंटेंस है आपके पास, उस सेंटेंस को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद उसमें सेगमेंट्स क्रिएट किया, सेगमेंट्स में तो उस ऑर्डर में ले लिया जिस ऑर्डर में उसको चाहिए। जावा लाइक एग्जांपल, और भी इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो सेकंड पार्ट जो करते हैं उसमें वर्ड टोकनाइजेशन करते हैं। तो वर्ड टोकनाइजेशन यूज्ड टू ब्रेक द सेंटेंस इनटू सेपरेट वर्ड ऑफ टोकन्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे जावा डिफाइन ऑफर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड विंटर ट्रेनिंग। वर्ड ऑर्गेनाइजर जनरल फॉर फॉलोइंग डिटेल्स। जावा डिफाइन ऑफर्स कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, समर ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड विंटर ट्रेनिंग। इंटरकनेक्टिंग शब्द जो होते हैं बीच के हटा दिए और कीवर्ड कीवर्ड पकड़ लिए। तो मेन कीवर्ड क्या, जावा डिफाइन है, क्या करता है, ऑफर करता है, किसके बाद में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को, किसके बाद में समर ट्रेनिंग को, किसके बाद में ऑनलाइन ट्रेनिंग को,
और किसको करता है? विंटर ट्रेनिंग। तो सारी ट्रेनिंग्स आ गई और सारे के साथ टोकनाइज कर दिया। अब इसके बाद उन्होंने स्टेमिंग किया। स्टेमिंग इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज द वर्ड इनटू द केस form or root form. For example, celebrate, celebrated, and celebrating. All these words are originated with a single root of celebrate. The big problem with stemming is that sometimes it uses a root word which never have a meaning. आप समझ में आ गया? तो स्टेमिंग में क्या जाता है? सबसे पहले रूट वर्ड निकाल लिया था। अब रूट वर्ड आपने टोकनाइज किया है, वहीं से निकलेगा और उसकी जो भी फॉर्म होगी उसके हिसाब से उसकी स्टेमिंग करनी पड़ेगी। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर आप उसका सही वर्ड नहीं निकाल पाते। Intelligence, intelligent, and intelligent. All these words are originated with a single root word intelligent. So in English, the word intelligent do not have any meaning. अब रूट वर्ड आपने निकाला इंटेलिजेंट, इंग्लिश में इंटेलिजेंट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन उसका रूट वर्ड में सब लिखे इंटेलिजेंट, 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 क्योंकि वहां से चेंज होना स्टार्ट हो। तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो स्टैंडिंग इज यूज्ड टू नॉर्मलाइज द वर्ड इनटू द बेस फॉर्म और रूट फॉर्म। For example, celebrate, celebrated, and celebrating. All these words are from a single word to celebrate. क्योंकि सभी में आप ये देखिए सिंगल रूट वर्ड आता है। The big problem is this timing is sometimes using a root word which do not have any meaning. और जैसे इंटेलिजेंट बना दिया इसने रूट वर्ड, इसी से इंटेलिजेंट बनेगा, इंटेलिजेंसी बनेगा, सारी चीज बनेगी। लेमेटाइजेशन। अब लेमेटाइजेशन का मतलब क्या है? लेमेटाइजेशन इज क्वाइट सिमिलर टू द स्टैमिंग. It is used to give different impacted form in a word called lemma. The main difference between stemming and lemmatization is that produces the root word which has a meaning. For example, in lemmatization, the word intelligence, intelligent, intelligently had a root word intelligent, which has a meaning. तो जब आपका स्टैमिंग किया जाता है तो वहां पर अगर नॉन मीनिंगफुल वर्ड अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर लेमेटाइजेशन करके आप उसका मीनिंगफुल सेंस क्रिएट करते हैं। आइडेंटिफाइंग द स्टॉप वर्ड्स। In English, there are lot of words appear very frequently, like is, and, the, and, a. NLP pipeline to flag these words as a stop words. So stop word might be filtered out before doing an statistical analysis. So he is a good word. So he is a good word. Is or a general stop word. He is a good word. Dependency parsing. I'm now coming on. Dependency parsing is used to find how the word in the sentence are related to each other. आपस में एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है? Pause tags. Pause stand for the parts of a speech which includes noun, verb, adverb, adjective. It indicates that how a word function is meaning. A word has one or more part of a speech based on context image. तो part of a speech क्या है? कितने हिस्से हैं इसमें? जैसे sometimes Google something on the internet. In the example, Google is used as a verb, although it is a proper noun. अब क्या था? जैसे आप Google कर लो, है तो उसका नाम, लेकिन आपको प्रोसेस क्या बताया गया? You do Google. Google something. तो जब कहा जा रहा है Google कर लो तो उसको वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो ये कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है? A word has one or more part of the speech based on the context in which it is used. ये पार्ट ऑफ स्पीच की फॉर्मूला हो गया पॉज। नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, NER. Named entity recognition is the process of detecting the named entities such as person, name, movie name, organization or location. जैसे स्टीव जॉब, अब ये आ गया स्टीव जॉब आपका नेम एंटिटी रिकॉग्निशन. Introduce iPhone and Mac World Conference San Francisco, California. Chunking. Chunking is used to collect the individual piece of information and grouping them into the bigger piece of sentences. इस तरीके से 9 ऐसी मेजर स्टेप्स हैं जिन मेजर स्टेप्स हैं। अभी हम स्टेप्स की बात करें, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए क्विकली कि जो स्टेप है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है? इफ यू गो देयर, तो सबसे पहले स्टेप में आप सेंटेंस का सेगमेंटेशन करते हैं, फिर वर्ड का टोकनाइजेशन करते हैं, टोकनाइज करने का स्टैमिंग करते हैं, लेमेटाइजेशन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं स्टॉप वर्ड्स कौन कौन से, फिर डिपेंडेंसी पार्सिंग करते हैं, फिर पॉज टैग्स कराते हैं, फिर उसके बाद नेम एंटिटी रिकॉग्निशन करते हैं, फाइनली चंकिंग करते हैं। इस तरीके से 9 स्टेप्स के अंदर आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए मूव ऑन करते हैं। तो आज हमारा जो बेसिकली इस पूरे ऑब्जेक्टिव था, इसमें होता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है, इसके 2 मेजर कंपोनेंट क्या हैं और इसके क्या स्टेप्स हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेज हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस हैं, दैट ऑल वी हैव कवर्ड हियर। तो सारे के सारे यहाँ पर आपके अवेलेबल होंगे, आप इनको
पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, स्टडी के लिए भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, और साथ के साथ ये क्लास रिकॉर्डेड क्लास है, ये हमारी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए अवेलेबल है। सो फ्रीली यू कैन हैव अ डिस्कशन ऑन दैट। आप पढ़िए आराम से यूट्यूब चैनल से, इसको पढ़ सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, कई बार रिपीट कर सकते हैं क्लास को, कन्वर्सेशन मोड में लेके आ सकते हैं, हमसे बार बार डिस्कशन कर सकते हैं। सो एवरीथिंग इज ओपन फॉर यू, सो टेक योर टाइम एंड डूइंग गुड। इफ एनी क्वेश्चन appears here, please you may ask. एक्सक्यूज मी सर, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमेटाइजेशन? हाँ, लेमेटाइजेशन का मतलब आप यहाँ पे समझिए कि जैसे ही हम यहाँ पर एक प्रोसेस कर रहे हैं, स्टेमिंग, स्टेमिंग का मतलब होता है, जैसे सपोज कीजिए सेलिब्रेट्स, सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेटिंग, इन तीनों में ही जो सेलिब्रेट वर्ड है वो रूट है, तीनों में कॉमन है। ऐसे ही इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट और इंटेलिजेंटली में जो रूट वर्ड है वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि इंटेलिजेंट के बाद वो अलग हो रहे हैं। अब इंटेलिजेंट का कोई वर्ड मीनिंग तो होता नहीं है, तो मीनिंग नहीं होता, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लेमिटाइज करना पड़ेगा, कंप्लीट वर्ड बनाना पड़ेगा। तो जब ऐसे शब्द जिनके कोई मतलब नहीं होते हैं उनको कंप्लीट करते हैं तो उनको लेमिटाइज करते हैं। तो इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंट बना देना और रूट वर्ड मानना, इसको बोलते हैं हम लेमिटाइजेशन। ठीक है, और बताइए। सर, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एनएलपी?